اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ARY QTV ماہ ربیع النور کی ان پرکیف ساعتوں میں پیش کر رہا ہے خصوصی مقابلہ حسن تقریر، اور آج جو ایپیسوڈ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں یہ 7th ایپیسوڈ ہے، اور یہ بھی کوالیفائنگ راؤنڈ ہے جس میں 3 کنٹسٹنٹس اپنی تقاریر پیش کریں گے اور ایک اس مقابلے کو جیت کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرے گا۔ حسب معمول، حسب روایت ہمارے ساتھ صاحبان علم و دانش موجود ہیں جو رہنمائی کرتے ہیں ہمارے بچوں کی اور فیصلہ کرتے ہیں کہ آیا ان تینوں مقررین، تینوں پارٹیسپینٹس میں کون سب سے بہترین مقرر ہے، اور پھر وہ کوالیفائی کرتا ہے سیمی فائنل کے لیے۔ میں تعارف کراتا چلوں، آج کنٹسٹنٹس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد مصعب قریشی، جن کا تعلق مدرسۃ الانور سے ہے، اور آج یہ اپنی تقریر پیش کریں گے، اس مقابلے کے شراکت دار ہیں۔ اسی طرح عبد المعیز جامعۃ الانور سے ان کا تعلق ہے، یہ اپنی اسپیچ یہاں پر ڈیلیور کریں گے۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں اویس مرزا جامعۃ الرشید سے ان کا تعلق ہے، یہ بھی آج کے مقابلے میں اپنی تقریر کے صلاحیتوں کے جوہر دکھائیں گے۔ ہمیشہ کی طرح حسب معمول، حسب روایت صاحبان علم و دانش ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں مختصر تعارف کراتا چلوں کیونکہ فرسٹ ایپیسوڈ سے ابھی تک آپ بخوبی واقف ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آپ گاہے بگاہے ARY QTV کے پلیٹ فارم پر ان کی گفتگو اور جس انداز سے رہنمائی کرتے ہیں آپ سب ان سے واقف ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں رضوان زیدی صاحب، سر جزاک اللہ خیر مقدم ہے آپ کا۔ آپ کے ساتھ موجود ہیں ادریس صاحب، سر آپ کا بہت شکریہ، استاد الاساتذہ ہیں آپ، ہماری رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ آشکار داور صاحب آپ کے ساتھ تشریف فرمائیں، آپ تینوں صاحبان علم و دانش کا سر بہت شکریہ، میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور آپ کی اجازت سے میں چاہوں گا کہ ہم باقاعدہ اس مقابلے کا آغاز کریں۔ پہلے کنٹسٹنٹ کو اس 7th ایپیسوڈ میں دعوت خطاب دے رہا ہوں، محمد مصعب قریشی، جن کا تعلق مدرسۃ الانور سے ہے، کہ تشریف لائیں اور اپنی تقریر پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ جو موضوع آج کے لیے منتخب کیا گیا ہے وہ ہے مضمر تیری تقلید میں ہے عالم کی بھلائی، اتباع رسول کے حوالے سے یہ موضوع ہے جس پر یہ تقاریر، یہ مقابلہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ویلکم، خیر مقدم کیجئے پہلے کنٹسٹنٹ کا۔ نیم تاریکی میں ڈوبا مرجائے کول کا جنگل، اتباع کرن کے باعث پھلتے پھولتے چمن کا نظارہ آیا کرنے لگا ہے صدر علی وقار، کہ دور وحشت بت پرستی کی لعنت انسان کی توقیر و عظمت کا جنازہ نکال رہی تھی۔ لوگ جھوٹے خداؤں اور دیوتاؤں کے خاطر اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے کہ اتنے میں روشنی کی کرن نیم تاریکی میں آیا ہوتی ہے، تو جھوٹے خداؤں سے بیزار لوگ اس بڑھتی کرن کی تقلید کرتے ہوئے اندھیروں کے دیوتاؤں کو روند کر وحدہ لا شریک لہ کی صدائیں بلند کر کے ظلم و ستم کے پجاریوں کو زمیں بوس کر کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ مضمر تیری تقلید میں ہے عالم کی بھلائی، کہ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، کہ محمد کی کہ غلامی محمد دین حق کی شرط اول ہے، اگر کہ غلامی محمد دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں کوئی خامی ہو تو سب کچھ نامکمل ہے، اگر اس میں کوئی خامی ہو تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد مصعب قریشی اپنی تقریر پیش کر رہے تھے۔ سیکنڈ کنٹسٹنٹ آج کے مقابلے کے عبد المعیز جامعۃ الانور سے ان کا تعلق ہے، میں ملتمس ہوں تشریف لائیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ جب حب خدا نے اتباع محمدی کی ہم نشینی اختیار کر لی تو عالم کے لیے راہ فلاحیت علیکم بسنتی ہی رہ جاتی ہے، جو عالم کو گھپ اندھیروں کی کوہ میں چاندنی کے جزیروں کی دریافت عطا کرتی ہے صدر علی وقار، کہ جس پر جھریوں سے اٹے چہرے اور پتریلے ہونٹ ایک خفیف مسکراہٹ میں پگھل جاتے ہیں،
वो मुस्कुराहट जो दरिंदगी की कब्र से मसनद इज्जत पर बराजमान होती इब्ने हव्वा को नसीब होती है, वो हुब्बे जासिब जो आपके हक के यहूदी में उमर को असनुल कज़ा का हुक्म देने से उसके दिल की गुफा में पेवस्त हो जाती है, वो मजबूती जो काले गोरे अमीरों गरीब के इम्तियाज को खत्म करने से माशरे को मिलती है, और नाप तोल में कमी को झूठ के साथ बाइसे हलाकत और रुसवाई का करीना हालिया और अब्दिया होने की सनद देकर आलम को दुनियावी क़ियादत और दीनी पेशवाई का माजूनो मुरक्कब अता करती है कि जनाबे वाला हिल्म को बहादुरी का मेयार और मातहतों को मसनदे मैं खुद पर आपने बिठाया, तो आलम को वो रहबर अता हुआ जो तलबुल इल्म की फर्जियत की नस्ली वसीयत को कश्ती में इस्तादा करके इंसानियत को तासुबियत की तुन और मर्ग सिफत नदियों पार ले गया और चांद से अलम व सालम व मरहबन कहलाया, जिस पर मईशत, माशरत और समाज को वो नूरे खुदाई अता हुआ जिसकी चमक में मुज़मर भलाई आश्कार हो गई कि मुज़मर तेरी तकलीद में है आलम की भलाई। मेरा यही ईमान है, यही मेरा अकीदा, मेरा यही ईमान है, यही मेरा अकीदा। जो शख्सियत नहर किनारे पानी के इसराफ से रोक दे तो उसकी तकलीद ही भलाई का माखज़ अव्वल है सदर अली वकार। लेकिन अगर हम इसी तकलीद में अपनी भलाई को गिरदानते तो हम तू सिंधी मैं पठान की तासुबियत को जन्म न देते। तीसरी आलमी जंग के छिड़ने की मौहूम परछाइयां पानी की तह पर न पड़ती क्या लब्बैक या रसूल अल्लाह कि तुझसे कोई आया है न आएगा जहां में, देता है गवाही यही आलम का जरीदा, देता है गवाही यही आलम का जरीदा। शुक्रिया जी नाजरीन, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अब्दुल मुईज़ अपनी तकरीरी सलाहियतों के जौहर दिखा रहे थे और इनकी जो एक्सपर्ट ओपिनियन है इस तकरीर के हवाले से, जो वैल्यूएबल एडवाइसेस हैं वो तो यकीनन हमारे जजीज़ हजरात आखिर में देंगे, लेकिन ज़ाती तौर पर मैं इस बच्चे की मासूमियत और जिस जोश और जज्बे के साथ इसने अपनी तकरीर पेश की मैं ज़ाती तौर पे बड़ा मुतासिर हुआ। लेकिन जाहिर सी बात है कि जो असल कमेंट्स और रिमार्क्स हमें मिलेंगे जजीज़ हजरात की तरफ से, उसी की रोशनी में फ़ैसला होगा कि आज के इस मुकाबला तकरीर को किसने विन किया और कौन सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है। तीसरे और आखिरी कंटेस्टेंट आज के 7वें दिन के इस क्वालिफाइंग राउंड के उवैस मिर्ज़ा से मुल्तमिस हूँ आए और जामियातुर रशीद को रिप्रेजेंट करते हुए अपनी स्पीच का आगाज करें। उसवे हसना के पैकर रसूलुल्लाह, जहाने इल्म व अमल के यावर हैं सदर आली वकार। वो रसूलुल्लाह जो वदूदो करीम भी हैं, रऊफ़ो रहीम भी हैं और इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम भी हैं। वो रसूलुल्लाह जिनकी तलाश में बुहैरा राहिब घूमे और जिनकी फरासत पर हजरे अस्वद नसब करने वाला हर एक कुरैशी झूमे, जो कभी हिरा में जाएं, कहीं बकरियां चराएं, कहीं तिजारत को जरिए माश बनाएं, शोबे अबी तालिब की सख्तियां बर्दाश्त करें, नफरत के पेड़ काट कर भलाई का बीज काश करें। और फिर दुनिया ने देखा कि उनके असहाब ने ये सदा लगाई कि मुज़मर तेरी तकलीद में है आलम की भलाई, मुज़मर तेरी तकलीद में है आलम की भलाई। जनाबे वाला, हुजूर की अगर हिकमत अमली को देखा जाए तो इंसानी नफ्सियात की भरपूर तबाज़माई होती है कि बदर में तवक्कुल करें, ओहद में सब्र करें, खैबर में हमला करें, खंदक में तदबीर करें,
हुदैबिया में सियासत और तदब्बर के जरिए इन्ना फतहना लका फतह मुबीना हासिल करें, जो फतह मक्का पे ये ऐलान करें ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, तो हुनैन में फरमाएं अनन नबिय्यु ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, जी हाँ जनाबे वाला, सियासत और अस्करियत और फिक्र और तदब्बर की तमाम वादियों में अगर हम देखें तो आलम की भलाई उसी सैयदुस सादात फख्र मौजूदात शाह बशर व जिन्नात मौलाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीद में मुज़मर नजर आती है। इसलिए आलम इंसानियत की भलाई सार्तर, स्पेंसर, नक्शे फ्राइड हैकल और रूसों के फलसफों में नहीं बल्कि लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह की उस्वतुन हसना से मिलेगी कि खुशबू है दो आलम में तेरी है गुले चीदा, किस मुंह से बयां हो तेरे और साफ हमीदा, आवाज ये हर दौर की तकदीर से आई, मुज़मर है मुज़मर तकलीद है मुज़मर तेरी तकलीद है, मुज़मर तकलीद में है तेरी आलम की भलाई, मुज़मर में तेरी तकलीद है आलम की भलाई। शुक्रिया जी नाज़रीन इकराम, इस 7th एपिसोड में तमाम कंटेस्टेंट्स ने अपनी तकारीर पेश की और अब हम चलेंगे अपने मोहतरम मुअज़्ज़ज़ जजीज़ हज़रात की तरफ, मुनसिफ़ीन हज़रात की तरफ, और जानना चाहेंगे कि जनरल कमेंट्स और रिमार्क्स क्या हैं। आज जो तकारीर पेश की गई, मुज़मर तेरी तकलीद में है आलम की भलाई, इस हवाले से मैं चाहूँगा रिजवान साहब आपसे आगाज़ करना कि क्या कमेंट्स करेंगे। बिल्कुल मुकाबला अच्छा, लेकिन अज़रा तफन्नुन एक गोशगुजार करूं कि कोई एक उस्ताद है इन बच्चों के पीछे जो उस्तादी दिखा रहा है। कहने का मेरा मकसद है बेटा सीखो लेकिन अपने अंदाज के साथ आओ, यानी कि मोनोटोनस नहीं होनी चाहिए। हम तवातुर से जो तकारीर सुन रहे हैं आज, 7वां अंदाज आपका अपना होना चाहिए। और ये कोई आसमानी सहीफ़ा थोड़ी है, फ़न तकरीर के अंदाज इब्तिदा में इस तरह होगा, दरमियान में इस तरह होगा और इख्तिताम ऐसे होगा। ठीक, आसमानी सहीफ़ा थोड़ी है नाउज़ुबिल्लाह के, हमने उसी को आगे लेके चलना है। और एक मुझे ज़ाती हैसियत में मदारिस के बच्चों का भी अगर काफ दुरुस्त नहीं होगा तो ये लम्हा फ़िक्रिया होगा। कि मदारिस के बच्चों के साथ तो तजवीद के मामलात हैं ना, वो तो गलती की गुंजाइश नहीं है, तो मिसरा दोहराने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक दफ़ा अदा किया, बखुदा हमने उतनी ही दिल जमई के साथ सुना जितनी दूसरी मरतबा अदाई की सूरत में हम सुनते हैं। तो लेकिन मजमूई तौर पर एक अच्छा रहा। यही सारी चीज़ें एक जगह मैं चाहूँगा कि इदरीस भाई उस पर भी बिल्कुल वजाहत करें कि हब बोला गया और हुब की जगह। तो हब जो है वो गोली को कहते हैं, यानी कि हिकमत में जो है हब्बे कबद नौशादरी, तो वो नौशादर की जो गोली होती है तो वो हब कहलाता है, लेकिन हुब जो है वो मोहब्बत और मुहिब में उसमें आता है। तो बहरहाल लेकिन मुकाबला अच्छा था, सुनना अच्छा लगा। जज़ाकल्लाह। इदरीस गादी साहब, सर क्या फरमाइएगा। रिजवान ज़ैदी साहब ने बहुत अच्छी निशानदेही की और एक बहुत मुफीद मेडिसिन या दवाई की तरफ इशारा भी कर दिया। हब्बे कबद नौशादरी, असल में ये लफ्ज़ टैबलेट के लिए होता है, लेकिन अब ज़माना तब्दील हो गया। टैबलेट अब गोली को नहीं कहते, अब टैबलेट वो जिससे बच्चे गेम खेलते हैं। बिल्कुल खैर, लेकिन जो दुरुस्त लफ्ज़ है वो मालूम होना चाहिए तालिब इल्मों को। हुब मोहब्बत, ठीक है ना। तो बाज़ लोग हुब्बे कबद नौशादरी भी कहते हैं, जो कि लतीफ़ा बन जाता है। हुब मतलब मोहब्बत, हब मेडिसिन, टैबलेट या गोली, ठीक है ना। और एक लफ्ज़ और इस्तेमाल होता है हिबा, गिफ्ट करना, ये भी अरबी में इस्तेमाल होता है। हिबा गिफ्ट करना, तोहफ़ा देना। खैर, एक लफ्ज़ पुजारी दुरुस्त है जो गलत बोला गया था। दिन दहाड़े बोलना चाहिए था जो वो लफ्ज़, बल्कि बोलना नहीं चाहिए था, कहना चाहिए था। ठीक, मैं अपने लफ्ज़ को खुद ही वाज़ेह कर रहा हूँ कि बोलना तो वो कहते हैं, वो बोलते तो परिंदे हैं, इंसान तो कहता है, ठीक है ना, अदा करता है। बिलखुसूस अशार में, तकारीर में कहना, बोलना तो किसी और के लिए तो हो सकता है, लेकिन रोज़मर्रा में ये मुरव्वज है तो हम कसूरवार करार नहीं देते। ठीक, कि मैंने उसको बोला, वैसे गलत है ये, लेकिन रोज़मर्रा में चलता है। मैंने उससे कहा, मैंने उसको कहा, ठीक है ना। बिल्कुल ठीक, उसको कहा और उससे कहा, ठीक है ना। उससे कहना, उसको कहना, दोनों में फ़र्क है। यानी उससे कहा, मैंने किसी से मैं मुखातिब हुआ और मैंने कोई बात, उसको कहा मतलब किसी काम के लिए कहा, उसको कहा कि दरवाज़ा खोल दो, ठीक है ना। उससे कहा सो जाओ, ठीक। तो उससे
डायरेक्ट रिलेट कर रहा है और उसको किसी काम से मरबूत कर रहा है। खैर बहरहाल ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन तकारीर माशाअल्लाह। और अच्छी बात है कि स्कूल और कॉलेजेस के तलबा के साथ ये मदरसे के तलबा जो है वो भी कॉम्पीट कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं, और ये ARY को टक्कर का मुकाबला कर रहे हैं। QTV को ये एहसास जाता है कि उन सबको एक ही प्लेटफॉर्म पर जमा कर दिए कि आप मुकाबला करके दिखाओ। ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा रहा आज का मुकाबला, बहुत अच्छा है। जीतेगा तो ज़ाहिर इनमें से कोई एक ही, बिल्कुल सर, लेकिन तीनों मुकर्रिर बहुत अच्छे हैं। जज़ाकल्लाह। सर आपका ओपिनियन? तीनों बच्चों ने अच्छा मुकाबला किया, डिलीवरी अच्छी थी और मौजू बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा मौजू था कि तकलीद में आलम की भलाई है और रब की ज़ुबान में अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कि अल्लाह की इताअत करो और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। मैं बार बार ये कहता हूँ कि इताअत से मुराद ये नहीं कि हर वक्त हम सजदे में पड़े रहें या हर वक्त रुकू में खड़े रहें, बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जो अमल किया है वो इबादत बन गया है। वाह वाह वाह। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करें, इताअत करेंगे उसमें आपकी भलाई है। अब देखें ना, अल्लाह पाक बेनियाज है, उसको नहीं हमारे सजदों की ज़रूरत, मलाइक बहुत हैं, लेकिन उसने हमें आजमाने के लिए दुनिया में भेजा कि इस इधर आओगे तो मेरे होगे, उधर जाकर तो शैतान के हो गए। तो मकसद कहने का, और फिर एक नमूना हयात बना के भेज दिया गया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि देखो ये मेरे महबूब हैं, ये जो करें वो समझो मैंने कहा है। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, क्या कहने, जो ये कह रहे हैं मेरी तरफ ना देखो, इनकी तरफ देखो, जो ये कह रहे हैं मैं वो कह रहा हूँ। और फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब ज़ात ग्रामी आती है, उनका जिक्र आता है, तो जो अच्छे मुसलमान हैं, अच्छे अकायद के हवाले से, तो एक इश्क का धुआं सा उड़ता है, वो खूब हिसार में ले लेता है सुनने वालों को। क्या कहने। तो माशाल्लाह तीनों बच्चों ने ऐसी तकरीर की। हाँ, आपके पीछे जो इदरीस भाई ने कहा लिखने वाले लोग हैं, उनसे बादब रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा मजमून को अच्छे अल्फाज में बयान किया करें। कहते हैं ना कि छोटी जुबान बड़ी बात, ठीक, तो आसान अल्फाज इस्तेमाल किया करें। बहुत अच्छी डिलीवरी आपने की है और नतीजा आपको समीर भाई बताएंगे, समीर भाई, लेकिन अच्छी डिलीवरी है और मौजू के लिहाज से अच्छा बोला तीनों ने। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह, सो नाइस ऑफ यू। जी नाज़रीन, बहुत वैल्यूएबल एडवाइसेस हैं, एक्सपर्ट ओपिनियंस हैं हमारे मुनसिफीन हजरात के, और बहुत सीखने का मौका मिलता है हमारे इन नौजवानों को, हमारे इन बच्चों को। और इनकी ग्रूमिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब ये आगे चलकर गुफ्तगू करें या फिर तकारीर करें, ख़िताब करें, कहीं पर भी आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौसीफ़ और सना बयान करें, तो इनको वो तमाम ढंग आने चाहिए, वो तमाम अज्जाए तरकीबी जो किसी भी गुफ्तगू या तकरीर को मौसर बनाते हैं, वो सब इनको आने चाहिए। तो इस हवाले से ये रहनुमाई करते हैं, अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। और यकीनन आशकार दावर साहब ने खूब बात फरमाई, और कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि मई युतिर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, कि जिसने इस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की, इत्तिबा की, वो ऐसा ही है कि जैसे उसने अल्लाह की इताअत की। तो कुर्बान जाइए, मौजू वाकई बड़ा मज़ेदार था और बहुत अच्छी बातें सुनने के लिए मिली कि मुज़मर तेरी तकलीद में है आलम की भलाई। फैसले का वक्त है कि आज तीनों कंटेस्टेंट्स में वो कौन सा शानदार मुकर्रिर है कि जिसने आप आज के मुकाबले को जीत कर रसाई हासिल की है सेमीफाइनल तक। तो मैं वो आपको अनाउंस करने लगा हूँ। जी नाज़रीन किराम, मुकाबला हुस्ने तकरीर के आज इस 7वें एपिसोड में, क्वालिफाइंग राउंड में, जिस कंटेस्टेंट ने आज का ये मुकाबला जीता है उसका नाम है अब्दुल मोइज़, और ये रिप्रेजेंट कर रहे थे जामियातुल अनवर को। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ माशाल्लाह इनको सेमीफाइनल में पहुँचने की। और मुझे उम्मीद है कि जो भी आपको कमेंट्स किए, जजिस ने जो भी एडवाइसेस दी, आप उसको फॉलो करते हुए सेमीफाइनल और फिर इंशाल्लाह फाइनल तक रसाई हासिल करके इस मुकाबले को भी जीतेंगे। और नाज़रीन किराम, जैसा कि आपके इल्म में है कि जो एलिमिनेट हो जाते हैं कुछ कमियों की वजह से, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आगे चलकर ये भी बहुत अच्छे मुकर्रिरीन बनेंगे, मैं चाहूँगा कि ARY QTV की जानिब से जो इनको सर्टिफिकेट्स ऑफ मेरिट, सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन पेश किए जा रहे हैं, उसके लिए आशकार दावर साहब से मुल्तमिस हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने दस्ते मुबारक से इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए इनको सर्टिफिकेट्स ऑफ एप्रिसिएशन दें। और उसके साथ साथ फूड बस्ती की जानिब से इनको गिफ्ट हैम्पर्स भी नाज़रीन किराम दिए जा रहे हैं। जी बेटा, आप दोनों तशरीफ ले आए। जी नाज़रीन किराम, आप मुलाहिज़ा कर रहे थे आज के इस मुकाबला हुस्ने तकरीर की 7वें एपिसोड। और जाते जाते मैं अपने जजिज़ हजरात का, मुनसिफीन हजरात का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। सर जज़ाकल्लाह, आपकी रहनुमाई बहुत ज़रूरी है हमारे इन बच्चों के लिए, और आने वाले वक्त में हमें यकीन है कि ये बेहतरीन मुकर्रिरीन साबित होंगे। नाज़रीन, जाते जाते इन अशार के साथ आपसे रुखसत ले रहा हूँ। कल फिर से इंशाअल्लाह 8th एपिसोड में, 8वें और आखिरी क्वालिफाइंग राउंड में आपसे मुलाकात होगी इन अशार के साथ कि लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी मुश्किल तेरी आसान पढ़ा कर, और पढ़ने के लिए तुझको अगर कुछ न मिले तो
چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، اور آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ اپنے میزبان سمیر احمد کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔